एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह के गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्णना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुम्हारी महिमा बरन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना जो हमारी बेदोती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थपे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी जिन्हां दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर रात्रि दे दीवाना विच हाजरियां भर के गुरबाणी पढ़ सुन के सत संगत करके अपना मनुखा जीवन सफला कर रहे अति सत्कारयोग गुरु सवारे सत संगी जनों, आओ सतगुरां दी किरपा दे सदका पावन बाणी दे शब्द कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल श्रवण कीते ने। नेता प्रति की तरह चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन दियां अमोलक विचारां दे राहीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन चरनां नाल जुड़न दा यतन करिए। कल दे दीवाना तक आप जी ने श्रवण किया है कि तीसरे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास महाराज जी गुरता गद्दी दे उत्ते सुभाईमान ने ते सतगुरां दे चरनां दे विचों सिੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, सेवा की दात, सिमरन की दात
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਤਰੁੱਠ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੇ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਉਲਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਗਤਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਕਾਹਤੋਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਵਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਨੀਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰੁੱਠੇ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਨਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਹੈ,
संतोखी मन लैके जिथे पिता ने बच्ची का एक बारी रिश्ता कर दिता उत्थे कोई सवाल नहीं। ते मैं कहना अज दियां बच्चियां नूं सेध लैनी चाहिए है। धन गुरु अमरदास महाराज जी की बच्ची बीबी भानी तो भी सतगुरां ने जिथे पिता गुरु ने बचन कर दिते उस तो वध के कोई बचन नहीं। अज साडी दुर्दशा तां होई पई है, ना असी इतिहास तो जानू ते ना असी कदे बाणी नूं पढ़न दा, बाणी नूं विचारन दा, जीवन दे विच वसाउण दा यतन कीता। जिहड़ी अज साडी दुर्दशा होई है ना, इहदा कारण असी आप ही हां। बेनती करा, कोई फील ना करियो, अज जिहड़ियां बच्चियां माता पिता तो बाहरी हो के अज कर्म जिहड़ियां कर रही हैं, कदे बीबी भानी वर्गियां दा जीवन पढ़ के देख लो। गुरु अमरदास महाराज जी चाहुंदे ते ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ना कोई घर है, ना कोई रिश्तेदार साग संबंधी है, ना कोई नौकरी पेशा है, तो गुरु घर दे विच सेवा करके प्रशादा छकदा है। ते पातशाहां दे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी बच्ची का रिश्ता कर दिता। अज दे समय विच भी तुसीं देखियो, भावें लखां वारी असीं विचार कर भी लई ते सुन भी लई, अज भी जिहड़ा गुरु घर दे विच सेवा करन वाला है ना, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। केवल टोकरी ढोरे ने जेड़ी सेवा कोई नहीं करता, वो भाई जेठा जी करते हैं, क्योंकि गुरु की दयालता लैनी है। जिन्हें गुरु की दयालता लैनी है ना, वो लोक लाज नूं जीवन के अंदरों त्याग देंदा है कि लोग मैनू की कहणगे। इक्को ही वचन जीवन अंदर रह जाता है कि जे मैं गुरु के हुक्म में ना चलिया, गुरु मैनू की कहेगा। एक बाहरी तौर पर छोटी जी उदाहरण दें। कोई पति ते पत्नी इदा बाजार विच गए ते पति ने पत्नी नूं कहा भी आ जिहड़ा सूट दा रंग है ना, ये तू पावें ते मैनूं बड़ा पसंद है, तू पावें ते मैनूं बड़ा पसंद है। पत्नी चंगी सी, पति दे कहणे विच रहण वाली सी। उन्हें कहा भी ठीक है, माई तो लैके पाना ही ये है। उन्हें जदों तन दे उत्ते सजाया, बाहर निकली घरों ते अड़ोसना पड़ोसना, जिदा अज दे समा कह लीए भी असीं होर कुछ देखते ही नहीं, देखते ही सूट इत्थे भी आके इदां ही हुंदा कई बारी। वो कहण लगिया भी तेरे ते रंग है जज्जिया ही नहीं, तेनों ठीक ही नहीं लग्या। वो कहंदी मैं तुहाडे वास्ते नहीं पाया, ये जिहड़े मैं अज वस्त्र तन ते पाए मैं तुहाडे वास्ते नहीं पाए, ये मैं अपने पति वास्ते पाए ने। मैं अपने पति नूं अपने उत्ते दयाल करना चाहुंदी हां। ये मेरे पति नूं पसंद है, तुहानूं पसंद आवे जां ना, मैं तुहाडे कोलों की लेना। अजे दुनिया तो पुछा, लोकां दा ध्यान मार के देखांगे, जे दुनिया दी विचार कवांगे ना, ते दुनिया ने ये गल कहनी है भी सानूं जिहड़ा पाउणा चाहीदा, वो जो दुनिया नूं चंगा लगे वो पाउणा चाहीदा। रमता वे तां बेनती कीती है, ऐसियां विचारां गुरु नानक साहब महाराज जी के घर दे विच आके सारियां खत्म हो जांदियां। इत्थे ते ओ विचार चलदी है, ओ गल चलदी है जिहड़ी गुरु नूं पसंद है। सिख ते ओ कर्म करदा जिहड़ा गुरु नूं पसंद है, क्योंकि मैं केवल ते केवल गुरु नूं प्रसन्न करना चाहुंदी है अपने जीवन दे विच। गुरु अमरदास महाराज जी की कृपा हुई, आनंद विवाह का दिन रखिया गया। जिस दिन बरात जानी है, कुछ मनुख इकट्ठे होए ते भाई जेठा जी के चेहरे उत्ते उदासी देख के तरह तरह के कई सवाल करते हैं, पर धन गुरु अमरदास महाराज जी ने
उस दिन भी गल बकड़ी दे विच लैके एक बचन किया सी, कहन लगे जेठिया फिकर ना करी, आ जेड़ा घर है तेरा ही घर तो है, जेड़े घर दे विच तू रह रहा ये तेरा ही घर है। अद मत सोच लवी कि दुनिया दे जदों विआह हुंदे ने किसी दा माता पिता चाचे ताए रिश्तेदार साख संबंधी नाल हुंदे ने। जेठिया अज एक गल याद रखी, अज मैं सारिया थावां ते होके कल्ले नहीं वरतना। वचन भावें गुरु अर्जन साहब महाराज जी दे ने, बाणी दे अंदर अनेकां थावां दे उत्ते सतगुरां ने बख्श की, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता। एवें थोड़ा एक एक वचन जेड़ा पावन बाणी दा ना वो गुरु इतिहास दे विचों सिद्ध हो जाता है। कई बार इतिहास विच बाणी दे अर्थ कीते हुए ने, कल्ली कहण दी गल नहीं कि गुरु साहिबां ने कह दिता भी तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता। भी गुरु साहब ने कह दिता, केड़ा किसी ने देखिया कि गुरु सारियां कमियां पूरियां कर दिंदा। अज गुरु इतिहास दे विचों गुरु रामदास महाराज के जीवन तुहानूं सारा कुछ मिल जाएगा। अज गुरु रामदास महाराज जी के परिवार विचों, उन्हां दे शरीके बलादरी दे विचों कोई एक भी ऐसा उथे नहीं। गुरु अमरदास महाराज जी ने गल बकड़ी विच लैके किया, कहन लगे जेठिया अज किसे गल दा फिक्र ना करी, अज मैं तेरे माता पिता भैन भरा साख संबंधियां दे थां दे उत्ते सारे पासे होके अज मैं कल्ला ही विचरांगा ते तेरे सारे कारज संपूर्ण होणगे। गुरु अमरदास महाराज जी ने कृपा कीती, जिथे अज बच्ची दा डोला धन गुरु रामदास महाराज जी दे नाल तोरना है, उत्थे भाई जेठा गुरु रामदास महाराज जी दे वाले पासे भी हो के सारे कारज उधर दे भी जेड़े सन वो आप कीते। इन्नियां बख्शिशां गुरु अमरदास महाराज जी ने। जदों बच्ची दा विआह हुंदा है ते हरेक बच्ची दे मन दे विच एक ख्वाहिश हुंदी है कि मेरा सहुरे घर किस तरह दा होवे, मेरा सहुरा परिवार किस तरह दा होवे। पर जिन्हां नूं गुरु दे चरनां दी प्यास हुंदी है ना, उन्हां नूं गुरु दे घर तो प्यारा कोई लगदा ही नहीं। अज उसे घर दे विच विआह होया है, उत्थों ही डोली उठनी है ते उसे घर दे विच ही रहनी है। धन बीबी भानी जी जिन्हां ने एक बारी भी किसी तरह का पूरे जीवन इतिहास दे विच किते एक बारी भी गुरु दे नाल गिला शिकवा नहीं कीता कि पिता मेरा सहुरा परिवार कित्थे है। उसे घर दे विच विआह के बीबी भानी जी नूं भाई जेठा जी लैके गए। पहिलां दे नालों भी जिहड़ी सेवा सी होर वधा दित्ती गुरु चरनां विच। अज जीवन में ये हंकार नहीं लिया के आए कि हुण ते मैं गुरु अमरदास महाराज जी का जवाई बन गया। ये हंकार बिल्कुल पहला दे नालों भी ज़्यादा सेवा, उहदे नालों भी ज़्यादा सिमरन करना शुरू कर दिता। जिथे पहले कल्ले सेवा करते सन, बीबी भानी भी सेवा करन लग पाए। फिर सेवा वो, क्योंकि सिख नूं गुरु साहिबां ने अपनी पावन बाणी के अंदर अपने पावन उपदेशों के राही जिवें जिवें गुरु अमरदास महाराज जी की आप दयालता प्राप्त की है ना, उस तरह के पावन बचन बाणी के अंदर कीते ने कि जेकर कोई गुरु की दयालता प्राप्ति करनी चाहता है, उहदे वास्ते वो कर्म करे जिहड़े गुरु नूं भाउंदे होण। सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने। सेवा करन दा ते वो फायदा ना जिहड़ी सेवा करन दे नाल गुरु साडे ते दयाल हो जाए, जिहड़ी सेवा करन दे नाल गुरु कहे भी वाह भाई सिक्खा अज तू ये सेवा कीती है, मैं तेरी सेवा तो त्रुठिया, अज मैं तेरी सेवा तो खुश हो गया। ते जिन्हां नूं गुरु दा पता नहीं वो बहुती बारी उदों भी है सन, ये नहीं कि उदों नहीं सी, उदों भी है सी। ते धन गुरु रामदास महाराज जी जिन्हां ते रहमत होनी सी, उन्होंने ऐसी सेवा निभाई। नहीं तो उदों भी है नहीं सेवा भी लोग वेखण ते मैनूं कहण भी सेवा बड़ी करदा है। बहुती बारी सेवा भी आप इदां करते हैं भी सानूं कोई देखे तो आखे भी आ बड़ा वड्डा सेवादार है।
पर धन गुरु रामदास महाराज जी भाई जेठा जी के रूप में रह के जिहड़ी सेवा धन गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में निभाई है ना, वो सेवा वो सी कि अज भावें मेरे अपने शरीके बलादरी दे गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में आके मैनू भी ते मेरे पिता गुरु नूं भी बोल कबोल बोलन ते कहण के अज एक जवाई सहुरे दे घर दे विच सेवा कर रहे हैं। अज दुनिया के लोग जो मर्जी कहन, मैं गुरु की दयालता प्राप्त करनी है, क्योंकि मैनू गुरु तो प्यारा कोई है ही नहीं। मेरे वास्ते गुरु तो बिना कोई गुरु वर्गा है ही नहीं। सेवा सिमरन करके गुरु साहब जी के चरणों की दयालता प्राप्त की। हर समय गुरु साहब जी के हुक्म दे विच रह के अपना जीवन बतीत करना, समा बतीत हुंदा गया। धन गुरु अमरदास महाराज जी की अवस्था जिहड़ी है वो पहला ही बजुर्गी दी है। ये सतगुरां ने रहमत बख्शिश की, जिहड़ी अखीर वाले जीवन दे विच आपां साखी पढ़दे हां कि जिहनूं साखी दे विच जिथे गुरु अमरदास महाराज जी त्रुठ के दयाल हो के गुरता गद्दी की बख्शिश कर देंदे ने। सेवा बहुत कीतियां ने, ये तो दुनिया के सामने रखण वास्ते सी कि आ इम्तिहान दे विचों केड़ा पास होंदा है। पास तो उस दिन तो ही हो गए जिदन गुरु अमरदास महाराज जी ने अपनी बच्ची का रिश्ता देता प्रवान, के उदण ही भाई जेठा गुरु अमरदास महाराज जी हो गया। संसार के लोग ये ना कहन कि अज रिश्ते करके किते गुरता गद्दी की बख्शिश कर दी है। दुनिया के सामने एक एक गल, क्योंकि जो गुरु इतिहास वाल झांक मारते हैं कोई सवाल रहिंदा नहीं मन दे अंदर, भी उठ के सवाल करते भी इदा कि हो गया। गुरु साहिबा ने पहले दिन तो लैके इस तरह का अपना जीवन, उस तरह का गुरसिखां का जीवन कि कल नूं कोई उंगली ना चुक सके गुरसिख के जीवन उत्ते भी इदा कि हो गया। गुरु अमरदास महाराज जी की शरीर करके अवस्था जी है भली भांत जानते हो। गुरु अमरदास महाराज जी गुरु अंगद देव जी के शरण में ही आए, उदों ही तकरीबन 62 साल की उम्र है। 41 आउंदे ने, 52 दे 1552 दे गुरता गद्दी की प्राप्ति होंदी है। 54 दे गुरु अमरदास महाराज जी भाई जेठा जी के नाल अपनी बच्ची का रिश्ता कर देंदे ने। जिहड़ियां होर रहमतां होईयां, एक बार इधर झात मार लीए गुरु रामदास महाराज जी के पावन जीवन वाला। अजे सिक्खी के रूप के विच ने, कोई जवाई वाली गल नहीं है भी गुरु रामदास महाराज जी कहते हो कि मैं जवाई हाँ गुरु अमरदास महाराज जी का। गुरु चरणों के विच सेवा निभाते रहे। गोइंदवाल साहब जी की पवित्र धरती के उत्ते ही गुरु साहिबान की बख्शिश हुई। 1558 दे विच भाई जेठा जी के घर दे विच एक बच्चे का जन्म होता है। उन्होंने नाम है बाबा पृथ्वी चंद जी। गुरु रामदास महाराज जी के 3 सपुत्र ने। मैं रबता बेनती की सी भी गोइंदवाल साहब ऐसी नगरी है गुरु रामदास महाराज जी की, गुरु अमरदास महाराज जी की, जिथे सारिया बख्शिशां जिन्नियां भी बख्शिशां गुरु रामदास महाराज जी के उत्ते होईयां, उस स्थान के उत्ते गोइंदवाल साहब जी की पवित्र धरती उत्ते होईयां। 1558 दे विच एक पुत्र का जन्म होंदा है, नाम है बाबा पृथ्वी चंद। 1560 दे विच दूसरे पुत्र की दात प्राप्त होंदी है, नाम है बाबा महादेव। 1563 दे विच तीसरे पुत्र की प्राप्ति होंदी है, उन्हां दा नाम है धन गुरु अर्जन देव महाराज। ये सारा कुछ गोइंदवाल साहब जी की धरती के उत्ते गुरु रामदास महाराज जी के उत्ते बख्शिशां होईयां। समा आया बीबी भानी भी जिथे गुरु रामदास महाराज जी सिੱਖੀ के रूप के विच सेवा निभा रहे ने, उत्थे बीबी भानी ने भी ये नहीं कदे सोचा कि मैं तो गुरु अमरदास महाराज जी की पुत्री हाँ। उन्होंने भी एक सच्चे सेवादार बन के गुरमुख बन के गुरु चरणों के विच हर समय सेवा निभाई है, जिथे भी जरूरत पई। समा आया गुरु अमरदास महाराज जी ने
ਰਮਤਾ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਥੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਥੜੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਦੋਨੇ ਥੜੇ ਢਾ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਥੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਥੜੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੜਿਆ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਫੇਰ ਥੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੜੇ ਫੇਰ ਢਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਥੜਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਲੀ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੜੇ ਢਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਥੜਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੜਾ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਥੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਥੜੇ ਫੇਰ ਢਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਢਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੇਰ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫੇਰ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੇਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੜਾ ਢਾ ਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀਠਿਆ ਇਹ ਥੜਾ ਢਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ
गुरु अमरदास महाराज जी के चरण फड़ ले कह लगे, पातशाह तू किन्ना दयाल है, तू किन्ना वड्डे जिगरे वाला है। दुनिया के लोग तो जेडे उस वेले हो सकता है भाई रामा जी वर्गे सामने होण, होर कई होण उत्थे जेडे कहते होणगे भी भाई जेठा भी थक गया थड़े बना बना के, अज ये भी गुरु अमरदास महाराज जी के चरणों में कहणगे कि पातशाह इतों लैके बाद में थड़ा मैं भी नहीं बनाना। गुरु साहब के चरण पढ़ के कहन लगे, पातशाह तू किड्डी रहमत दा मालक है, किड्डे वड्डे जिगरे वाले। कोई उस्ताद अपने शगिर्द नूं इन्ना समा नहीं देता, पातशाह जिन्ना समा तू मैनू दे देता है। पातशाह तू मैनू रोज दस के जाता है कि इस तरह का थड़ा बनाना है, पर मैं भुल जाना क्योंकि मेरे को ऐसी मत ही नहीं कि मैं तुहाडी मत के मुताबिक का थड़ा बना सका। हुण फर्क देखियो, भाई रामा जी कहते भी नहीं गुरु अमरदास महाराज जी तुहाडी अवस्था बजुर्ग हो गई है, तुसीं भुल जाते हो। ते गुरु रामदास महाराज जी कहते नहीं पातशाह तू समर्थ वड्डा, मेरी मत थोड़ी राम, तेरे कोल ते मत बड़ी है, तू नहीं भुलदा। मेरे कोल ही मत नहीं कि मैं थड़ा तेरी मत दा बना सका, मेरे को मत नहीं। जे तू रहमत करना, तू तो मैनू किया ही कुछ नहीं। अज मैनू 7 दिन हो गए गलतियां करदे नूं, तू मैनू पातशाह किया ही कुछ नहीं। कोई होर उस्ताद हुंदा वो मैनू बोल कबोल बोलदा, हो सकता मेरे तन ते भी चोटा मारदा कि तू किस तरह का शगिर्द है, किस तरह का विद्यार्थी है। अज 7 दिन हो गए तेनू पढ़ाउंदियां, पर तेनू फिर सबक याद नहीं होया। पातशाह तू ते है ही दया दा सोना है। किवें किवें अगला समा गुरु अमरदास महाराज जी गल वकड़ी विच लैके किवें किवें गुरता गद्दी दी बख्शिश करदी नहीं, ये अगले समय दे विच इतिहास साझा करन दा यतन करांगे जी। कोईयां बेअंत भुल्लां तो खेमा बख्शनी, आईयां होईयां संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद। आओ प्यार सैत फतेह बुलाओ जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।